Friends, so today in this class we are going to start with the chapter circles of class 10th. So we'll start with the chapter circles. Now we already know what is a circle. Circle is this kind of shape. This kind of shape where there is a center and a radius. And circle is what? It is all points which are at a common difference or equal distance from a given point. A given point though, when all the different points are at equal distance, that symmetry is called to be circle. Now we'll further go to the details of other concepts regarding circle, that is tangent and secant. So what is tangent and what is secant? Simple ji cheez there. Let's say we have drawn a line like this. We have drawn a line like this, which is cutting the circle at two different points. At two different points. So a line circle को two different points पे cut कर रही है, and this line which cuts the circle at 2 points is known as secant. Is known as secant. यहाँ पे confusion मत लेना डियर कि हम इसे कोड बोलते हैं. कोड is different thing. कोड is this. It's a line segment. एक small part of the line which is touching circle at two different points is called to be chord. When we talk about the complete line, and that is called to be the secant. Is that clear or not? Likewise, if line is not cutting the circle at 2 points, rather it is touching the circle at a single point. It touches the circle at a single point, and this is known as tangent. So it should be clear, bache. What is secant? Secant is a line which intersects the circle at two different points, whereas tangent is the line which touches the circle at a single point. And where the tangent touches the circle, this point is known as point of contact. It is known as point of contact of the circle with the tangent. Is that clear or not? So we can draw even radius as well. So that is what we call secant and tangent is. So it is normal thing बच्चे जो आपने learn करनी है कि secant क्या होता है, tangent क्या होता है. Is that clear? Now there are some theorems, some proofs related to this. Let us start with the first theorem. Theorem 1. To prove that tangent to the circle is perpendicular. So this is a perpendicular, ठीक है, to the radius at point of contact. At point of contact. So ध्यान से देखना बच्चे, what do we have to prove? हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक टेंजेंट है. एक सेकेंड यार, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस को ज्वाइन करें, जैसे रेडियस, दिस इज अ टेंजेंट, दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये एंगल होगा वो किसका होगा, 90 का होगा. दैट मीन्स द टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जो टेंजेंट है जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आ रहा है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. चलिए इसे प्रूव करते हैं. कैसे करेंगे? Let's say this is O, this is A. So for that purpose, just to prove this thing that it is always perpendicular, we will construct something कि we have drawn a line from O to the line tangent which meets the tangent at point Q.
and this is point, let's say B. OQ is cutting the circle at point B and meets the line at point Q. Now, but a simple theorem idea. You want to prove that, let's say line have there M N. So line का नाम है MN. So what we have to prove is OA is perpendicular to MN. That is what we have to prove. अब प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या? Now, just try to understand. अपने को किया बच्चे कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर आ तो ऑब्वियस है केड़ा होगा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा की होएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखियो अगर मैं एक पॉइंट तो एक लाइन की गल करा तो देयर आर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल बट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस केड़ा होएगा जिहड़ी लाइन बच्चे की होएगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी एंड दैट इज द रूल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर लाइन क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ऑब्वियस और डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तो हल्का जा ग्रेटर होएगा दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू प्रूव दैट कि जो OA आ दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता Q ऑन द लाइन MN तो उसमें मैं मैच किया यस और नो नाउ जस्ट थिंक अबाउट OA is equals to OB. Both are radiuses. अगर हम OQ की बात करें ठीक है सो OQ is equals to OB plus BQ which is two parts. अगर इस लाइन की बात करूं तो it is a combination of OB and BQ. What we know that कि OB and OA are equal. Both are radiuses. That means जो OQ है वो OB से थोड़ा सा बड़ा है BQ उसमें ऐड हो रहा है. It means I can say as OA is equals to OB and we know OQ is greater than OB so we can say OQ is greater than OA. That means मैंने कोई भी random point लिया डियर एंड वो OA से क्या आ गया बड़ा आ गया अभी पॉइंट यहाँ पे होता यहाँ पे होता यहाँ पे होता कहीं पे भी होता OA से क्या होता बड़ा होता इट मीन्स A के अलावा अगर कोई भी हम पॉइंट ले यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले जो उसकी लेंथ है वो OA से क्या होगी बड़ी होगी इट मीन्स जो OA है दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ अगर OA शॉर्टेस्ट लेंथ है वी नो दैट शॉर्टेस्ट कब होती है जब वो लाइन कौन सी होती है परपेंडिकुलर लाइन दैट मीन्स OA इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ लाइन MN सो इज दैट क्लियर सो दैट इज अ सिंपल थ्योरम कि जब भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो रेडियस के हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर थ्योरम से ज़्यादा इस पॉइंट को दिमाग में रखना डियर ये आगे यूज होगा बट थ्योरम भी आप लोगों ने अच्छे से करनी है क्योंकि इट्स अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम इट्स अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेट्स डू वन मोर थ्योरम व्हाट एल्स वी हैव tangents drawn from external point to the circle are equal. Tangents drawn from the external point to the circle are equal. What does it means? कि हमारे पास एक सर्कल है ठीक है हमारे पास एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट उससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए अभी इसके अलावा मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर हल्की सी लाइन इससे अंदर जाएगी वो दो पॉइंट्स पे कट होके जाएगी एंड वो सेकेंड बन जाएगी दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं लेट्स से दिस पॉइंट इज O it touches the circle at point of contact is A and its point of contact is B
What I have to prove is that OA is equals to OB. OA is equals to OB. For that, what we do, let's draw center, that is O, join them, and join them. तो मैंने तीनों को ज्वाइन कर लिया. सो यू कैन डू दिस. कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि ज्वाइन OA, OB एंड ओके दिस पॉइंट इज ऑलरेडी O ना, इसनो नेम कुछ कर लो, P कर लो, ठीक है. नाउ OA, सो हेयर आल्सो इट विल बी PA एंड हेयर आल्सो विल बी PB, ठीक है. सो OA, OB एंड PO, इनको ज्वाइन करो. So that is something what we did. हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली and we have to prove that PA is equals to PB. So let us prove. क्या प्रूफ रहेगा इसका? अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP. OAP this triangle, OBP this triangle. अभी दोनों ट्राइंगल्स में थोड़ा ध्यान देना. First thing, OA is equals to OB. Yes or no? OA is equals to OB because दोनों क्या है? रेडियसेस है. दोनों क्या है? रेडियस. Secondly, because this is the tangent, this is the radius, so angle will be of 90 degree. Because this is the tangent, this is the radius, the angle will be of 90 degree. जैसे कि हमने थ्योरम 1 पे किया है, so we can say that angle A is equals to angle B 90 degree each. Third, अगर हम देखें, there is a side common. There is a side common OP, OP. That means OP is equals to OP common side. तो यहां पे क्या लग गया बच्चे? SAS, साइड एंगल साइड. सो अगर तीन चीजें हमने प्रूव कर दी तो ऑब्वियस है the first triangle OAP is congruent to second triangle OBP. Yes or no? अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. दैट मीन्स OA ऑलरेडी हमें पता है इक्वल्स टू OB एंड सॉरी ऑलरेडी टू साइड्स हम यूज कर चुके हैं. सो डायरेक्टली वी कैन से दैट PA is equals to PB. Hence prove that whenever we draw two tangents from an external point to the circle, their lengths are always equal. Not lengths up to infinity, but tangent up to point of contact. Clear? अभी बच्चे अगर मैं नेक्स्ट थ्योरम की बात करूँ तो इसी थ्योरम से हम एक दो चीज और भी प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज that both the tangents subtend equal angle at the center and they are equally inclined to the segment joining the center to the point. ध्यान से देखना बच्चे, हमें अब क्या प्रूव करना है? सेम के यूज कर पाएंगे हम उसके लिए. टू प्रूव both subtends equal angles at center. That means what I have to prove is this angle is equals to this angle. That means angle AOP is equals to angle BOP. एंड फर्स्ट इसे प्रूव करना है. सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट. सेंटर को जो पॉइंट है ये सेगमेंट जोड़ रहा है, इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड हो गया, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO. अभी इसमें कुछ नया नहीं करना, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस है
ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये दोनों कंडीशन क्या होगी, प्रूफ होगी। सो इज दैट क्लियर और नॉट? तो दीज आर द फर्स्ट 3 थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सेकंड थिंग, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बोथ द टेंजेंट्स हैव इक्वल लेंथ। थर्ड, दे आर subtending equal angle at the center, and last one, they are making equal angle with the segment joining the center with the point। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ऐसे टेंजेंट है इसका, ठीक है, इट इज गिवन टू मी, फिगर गिवन है हमें, ठीक है, ए बी पी क्यू आर एक्स, ए बी पी क्यू आर एक्स, these points are given to me. This side xp and xq are tangents from x, xp and xq are tangents from x, and r is a point on the circle। ये पॉइंट किस पे है, सर्कल पे है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर, इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर। चलिए प्रूव करते हैं सॉल्यूशन। अभी मैंने क्या प्रूव करना है डियर, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए दिस साइड, ए आर दिस साइड, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर, एक्स बी दिस साइड, बी आर दिस साइड, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। दैट मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ। क्लियर? बड़ा इजीली प्रूव होगा। अगर आप चेक करो तो यहां से पहली बात तो एक्स से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एक्स पी एंड एक्स क्यू, तो ऑब्वियसली वी नो दैट एक्स पी विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यू विद अ थ्योरम, यस और नो? तो दे आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्स। अगर इमीडिएटली मैं चेक करूं तो यहां पे कुछ और भी है विच यू शुड विजुअलाइज। एक पॉइंट है जिससे यहां पे भी टेंजेंट जा रहा है और यहां पे भी टेंजेंट जा रहा है। चेक करो, एक्स पी अगर टेंजेंट है, एक्स क्यू अगर टेंजेंट है, तो ए बी भी तो टेंजेंट है ना। तो ए पॉइंट से ए पी, ए पॉइंट से ए आर, दोनों टेंजेंट चले गए। सो आई कैन से ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, दे आर फ्रॉम ए। एंड इन द सिमिलर वे अगर हम चेक करें बी पॉइंट से बी आर एंड बी क्यू, दे आर द टेंजेंट्स फ्रॉम बी। Is that clear or not? So it should be clear that how we come to know about the tangents. Now just try to understand. अगर हम इसे थोड़ा सा break down कर लें, we can write xp as sum of xa and ap. Sum of xa plus ap. क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे xa चाहिए था। एंड वैसे हम राइट साइड को भी ब्रेक कर लेंगे। xp q को क्या लिखेंगे? xb plus bq। क्यों? क्योंकि xb मुझे चाहिए था। But we know that AP is equals to AR, so I will replace this with AR, and likewise BQ is equals to BR, so I will replace it with BR. Hence something that you want to prove is proved. So that was quite easy. आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ से पॉइंट से टेंजेंट आ रहे हैं, कहाँ से कैसे आ रहा है। सो दैट इज समथिंग अबाउट फॉर टुडेज क्लास। सो होपफुली आपको क्लियर होगा सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, थ्योरम्स एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर क्वेश्चंस। इन केस ऑफ डाउट यू गाइस कैन आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर।